اب آپ کل پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ آرام کریں. سفر ہے ہر وقت پہنچے سینٹر پہ اور اپنی چیزوں کو پورا کریں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ چار چیزیں آپ نے ساتھ میں لے کے جانی ہے. کووڈ کارڈ ہے, شناختی کارڈ اوریجنل ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے لے کر آنے جانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہے جو رول نمبر صرف کہتے ہیں وہ آپ نے ساتھ میں لے کے جانی ہے. رول نمبر صرف وہ بھی ضروری ہونی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا بیگ چلا بیگ چلا جو ہے وہ ہر صورت آپ نے لے کے جانا. یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. جس کی رول نمبر صرف نہیں نکلی وہ آج کوشش کر لیں جلدی نکال لیں اور وقت اس کو کر لیں. اب جب آپ صبح اپنے سینٹر پہ پہنچ جانا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ موسم ہو سکتا ہے ممکن ہے آج سے کل سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں. تو کس علاقے میں کیا موسم ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس علاقے پہ یا موسم کی صورتحال پہ. لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا کہ دو چار بچیاں ایسے جب پنڈی میں شدید بارش تھی اس وقت تو گلیوں میں بڑا پانی کھڑا ہوا تھا اور بچیاں بڑی گھر لیٹ نکلی اور بہت لیٹ ہو گئی. تو اس لحاظ سے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں سے اپنے سفر کے حساب سے 2 گھنٹے پہلے نکلیں. یعنی کہ آپ کا پیپر 2 بجے ہے تو آپ کا وہاں پہ 12 بجے ہر صورت وہاں پہ موجود ہوں. اس چیز سے آپ نے رسک نہیں لینا, ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سیل جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اگر کوئی باہر آپ کا ہے تو جانے والا تو اس کو دے دیں. ادروائز باہر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو وہ خراب کر سکتے ہیں یا لے جا سکتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنے بال پوائنٹ جو ہے نا بلیک یا جو گول مارکر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاٹ لگانے کے لیے, یا پھر آپ اصل جو چیز ہے بلیک مارکر اور جو ہے پوائنٹر بلیک آپ وہ استعمال کریں گے. پیپر کو بڑی تسلی سے فل کرنا ہے. کوشچن کو بڑی تسلی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. یہ نہ ہوگا بات وہ اس کا تو یہ تھا, ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک ایک نمبر اور تھوڑے تھوڑے پوائنٹوں پہ فائل کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے بڑی توجہ دینی ہے. باقی گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیپر آپ کو یہ بتا دیں کہ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں پیپر آپ کا آسان ہوگا. کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہوگا. صرف تھوڑا سا آپ کو ٹرکی لگے گا. پیپر پیپر بہت آسان ہوگا. اور میں جو ٹیسٹ آج لیا ہے اس سے بھی کئی گنا یہ تو مشکل ہے نا, اس سے کئی گنا آسان ہوگا. میں نے اس لیے یہ گرینڈ ٹیسٹ کا میں لینا نہیں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا تھا, میں لینا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لوز نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے کوشچن میں جو ہے نا وہ ایک ایک کوشچن میں 3 3 کوشچن, اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشچن پڑھا دیے جائے, آپ کی ذہن میں آ جائے. لہٰذا آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس پیپر کو آپ نے کیا مطلب آپ کو ہر صورت آنا چاہیے. آپ بس اتنا کیجیے کہ اس 100 نمبر کو آپ نے پڑھ کے جانا ہے. اللہ کرے اسی میں سے کوئی آسان سا کوشچن بھی یہ بھی آ جائے. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پیپر آپ کا آسان ہوگا, اتنا مشکل نہیں ہوگا, بلکہ ایوریج پیپر ہوگا. بس تھوڑا سا سوچ کے سمجھ کے اور دماغ سے کام لے کے آپ نے, ویسے تو سارے ہم نے دماغ سے کام لینا ہے, تو بڑی تسلی کے ساتھ پیپر دینے والا ہے. آپشن لگاتے ہوئے جلدی نہ کیجیے گا, مگر اتنا سست بھی نہیں رہنا کہ آپ بہت جلدی کر دیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ بر وقت پہنچنا ہے اور تسلی کے ساتھ کوشچن کرنا ہے. اور ایک جوابی شیٹ ہوگی اور ایک سوالیہ نشان ہوگا. ان چیزوں کو آپ نے سوالیہ پرچہ جاتے ہیں اس کو پڑھ کے جوابی شیٹ پہ آپ نے جوابات اس کے لکھنے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اب یہ آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ کیئرفل وہاں پہ رہنا ہے. کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ وہاں پہ الیکٹرانک چیزیں جو ہے یہ ڈیوائسز جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے. اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ آج کل سستی بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے پراپر لباس میں جائیں اور کوئی چیز ہینڈ فریز یا اس طرح کی سیل یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. بہت سختی ہے, یہ بھی آپ نے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو آ گئے پڑھنا, میں آپ کو پوری رات آج ہے پڑھنا کچھ نہیں ہے. میں تو آپ کو یہی کہوں گا صرف اور صرف ذکر اذکار اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. پیپر جب آئے ہاتھ میں تو اس وقت آپ نے جو معصوم دعائیں ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھے. اور یہ دعا پڑھے اللہم لا سہل الا
आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज को आपने हर सूरत टच करना है। मैं आपको ये बता दूं कि जनरल नॉलेज को हर सूरत टच करना है और कोशिश कीजिएगा कि सुबह का अखबार जो है वो उसको एक दफा आप पढ़ लें और पढ़ के जाए, ये ज्यादा बेहतर है। जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन आपके आंसर से लगने चाहिए और वहां पर भी सोच समझ के आप जवाब देख रहे हैं। आप थोड़ी सी जो अखबार पढ़े होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब क्वेश्चन कितने करने हैं? देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने इसके 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन है जो आपको 100% आते हैं, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन है जो आपको 70% आते हैं। तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन है जो आपको 50% आते हैं, ठीक है। अब ये 3 अटेम्प्ट है। ये नहीं देखना कि पहले मैंने एक तरतीब से चल रहा है, एक एक करता जाना है। नहीं, पहले तरतीब से पहले तो 3 मिनट पेपर को देखना है, ठीक है। देखने के बाद फिर आपने क्वेश्चन शुरू कर देना है और एक नजर देख। अच्छा, ये कोई अगर मुश्किल क्वेश्चन आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल लाजमी नहीं है कि हर किसी को 100 नहीं आएंगे वहां पे और मेरिट आपका इतना कम रहेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वहां पे बड़ी तसल्ली कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की गलती पे लास्ट टाइम हमारे 6 बच्चों का ऐसा मसला बना कि मेल का मेरिट था 60 और उनके नंबर आए थे 59.75, यानी कि पॉइंट 25 से फर्क आ गया। लिहाजा तुक्के इतने ज्यादा ना हो कि बहुत ज्यादा लगा दे, ठीक है। ये पेपर आपने पहले अटेम्प्ट में फौरी तौर पर वो करते हैं जो आपको 100% श्योर है वो आते हैं। दूसरी अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करने जिन पे आपको 70% श्योर है। तीसरी अटेम्प्ट में आपने बस उन क्वेश्चन की तरफ जाना है जिन क्वेश्चन पे आप ठीक तरह से श्योर नहीं है, बल्कि 50-50 है। अब एक होता है ऑप्शन, एक सवाल होता है जिसमें चारों ऑप्शन ही आपको नहीं आते, ठीक है। उसमें से आपको कंफर्म ही नहीं है, ऐसा सवाल छोड़ देना बेहतर है। अगर ऐसा सवाल हो जिसमें आप कहते हैं नहीं यार ये 4 तो नहीं, इन 2 में ही होगा, तो उन 2 में कोई सोच समझ के लगा दे, अल्लाह उसमें खैर डाल देगा इंशाल्लाह। लिहाजा सुन, अगर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं तो आप 60 में से 60 क्वेश्चन आ गए तो उसमें से उसके बाद आपने जो तुक्के लगाने हैं वो मैक्सिमम जो है वो आपने 10 से 15 लगाने हैं। 1 मिनट। जी, इसके बाद ही आपको बता रहे हैं, अगर तो 60 आपको आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपने तुक्के कितने लगाने हैं? 15 या 10। ये फीमेल के, ये आपने ध्यान में रखना, ये फीमेल के। अगर आपको 50 आते हैं, पेपर आपने जो लाजमी करना है ना, वो मैं आपको ये बता दूं, आपने लाजमी पेपर जो है ना वो 75 तक हर सूरत करना है। 75 से कम नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इतना पेपर तो आपने हर सूरत करना है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जिसको सिर्फ सवाल ही 30 आते हैं, सवाल ही जिसको सिर्फ 30 आते हैं, तो फिर वो क्या करे? फिर वो अपनी ट्राई करे और ट्राई करे टोटल क्वेश्चन पे। अब टोटल क्वेश्चन में भी वो 10-15 छोड़ दे कि जो उसको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। ये है एक तरीका का। मगर आप जितने भी लोग हैं, अगर आप में से 60 श्योर है ना, तो आप अगर तुक्के भी लगाना चाहे ना तो 10 तुक्के लगा लें बस। इसके अलावा तुक्के भी उनमें लगाएं जिनके अंदर आपको 50-50 आपको लगता है कि ये सवाल हो सकता है या ये हो सकता है। इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसको 70 आते हैं, अब वो क्या करेगा? तो वो फिर क्वेश्चन की तरफ
नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये सोच के समझ के करना है। और मैंने आपको सारी चीजें पिछली दफा बताई थी कि कोई चीज आखिर तक अगर क्वेश्चन का वेट करते रहते हैं, पास में मुमकिन होता है कि कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, इधर उधर से उनसे थोड़ा सा सवाल पूछा जाए तो तामुल कर देते हैं। हमें तो एक ही नंबर पे फाइट करना है ना। और अब ये भी ना हो कि आप सिर्फ तामुल पे बैठे रहे, मगर ये उन क्वेश्चन के अंदर है जो आपको बिल्कुल नहीं आता और आखिर में इक्का दुक्का। अपने 90 मिनट को आपने बचाना है, अपने 90 मिनट को आपने देखना है। 90 मिनट के अंदर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और मैंने बता दिया कि शुरू में पहले 1-2 मिनट आपने पेपर को नजर देखनी है और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने स्टार्ट कर देना है। साथ में पानी पिए, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन मुश्किल आए स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पानी पी सकते हैं, अल्लाह का जिक्र 1-2 मिनट कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे पेपर में करते रहते हैं, तो कुछ चीजों को सोचने से वो ना चीजें आ जाती होती है। बस मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को ज़हनी तौर पर तैयार रखें कि मैंने क्वेश्चन को याद रखना है, जवाब को याद रखना है। इंशाल्लाह इसके बाद जो आपका पेपर हो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत फायदेमंद रहेंगी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी और आप इसको अच्छी तरह ज़हन में याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। इस सिलसिले में अब आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या अभी रात सोएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप बिल्कुल अच्छी नींद लें, सोए अभी, और इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह फजर के नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पढ़े, कुरान पाक पढ़ के और उसके बाद आप दुआ करके अल्लाह से, तो अपने अपने सफर के हिसाब से आप जल्दी निकले और अपने मुकाम पर पहुंचे। और उस वक्त इतनी सी किताब के साथ लेके जाने की कि मैं गाड़ी में पढ़ लूंगा, मैं वहां पे पढ़ लूंगा, उसमें ये होगा कि आप परेशान होंगे, ठीक है। बाकी जो है अल्लाह माशा, जो अल्लाह ने नसीबों में लिखा होगा अल्लाह दे देगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला नसीबों को भी अच्छा कर देगा। ये एक मुस्लिम की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक मोमिन की हैसियत से हमारा ईमान है। तुमिना बिल क़द्र खैरि व शर्रि, अच्छी और बुरी तकदीर पे हमारा ईमान है। इंसान का काम है मेहनत कर छोड़ना और अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला उसको मेहनत को जाया नहीं करने वाला, अल्लाह उसके नताइज हमारे हक में रखेगा। लिहाजा मैं आपको 100% बता दूं, पेपर आपका बहुत आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, मगर थोड़ा सा सोच समझ के करना पेपर। मुश्किल चीजें नहीं आएंगी। देखिए हमारे टेस्ट में फिर भी हम थोड़ा सा लेवल चेक करके उसको बिल्कुल टेस्ट से थोड़ी सी उन चीजों की तरफ भी लेके जाते हैं। असल में ले जाना पड़ता है। आपको उनको सवालात बताने का मकसद ये होते हैं कि आपको पेपर ऐसा भी आ सकता है और फिर आप उन सवालों को भी पढ़ लेते हैं। तो आज आपकी टेस्ट था, ग्रेड टेस्ट, ये मुश्किल नहीं था, मगर ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। आप इसको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर लें कि आपने सिर्फ एक दफा इसे तसल्ली से ऊपर देख के पढ़ के जाना है। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कल से किताबें बंद करें, तसल्ली के साथ अपना वर्क करें और आगे बढ़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की भी देगा और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और मेरी दुआ है कि कल का दिन आपके लिए इंशाल्लाह कामयाबी की जमीन लेके शुरू होगा, कल का सूरज इंशाल्लाह, और आपकी फतह का दिन होगा और अल्लाह ताला इस दिन को आपकी कामयाबी का दिन बनाएगा इंशाल्लाह। बस यही बातें हैं। बाकी आप अपने आप को बेहतर समझते हैं कि मैंने आज भी बताया कि किसी की चीज के रह जाने से, ना होने से कोई चीज रुक नहीं जाती। हर चीज में चलना है, ये जिंदगी है, ये इसमें दौड़ना है। लिहाजा आपका काम है इसके लिए जो प्रोसेस कर सकते हो मेहनत करें। अब मेहनत के बाद नतीजे अल्लाह पे छोड़े। कामयाबी नाकामी ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह देगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपने इदारे से, मुसल्लिम ग्रुप से पूरी कोशिश की है। बाकी कभी कोताहियां तो इंसान में है, हम शायद उस तरह पूरी न कर सके हो, फिर भी उसके लिए हमारा दुआ है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आपके सुपुर्द है, अल्लाह के सुपुर्द है और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रहमत फरमाएगा और आप कामयाब होंगे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए दिन बादशाह का इजहार है, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो आप कर सकते हैं। ये लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा।